Today, we have come together to celebrate and draw inspiration from the lives and experiences of those who have chosen the path of civil services. This event is the part of our ongoing efforts of the Society Uran, the Civil Services Society of Shaheed Bhagat Singh College, in order to guide and motivate the students towards achieving their dreams of serving the nation through civil services. Before we proceed, let me briefly introduce today's program and our esteemed guests who have graciously agreed to share their insights and experiences with us. But first, let us stand in respect as we play the Diu Git, the anthem of our favorite Delhi University. Now, to begin with, let me introduce you to Uran, the Civil Services Society of Shaheed Bhagat Singh College. Uran is more than a society, it is a platform that is dedicated to nurture the aspirations of students who aim to serve the nation through civil services. Our society is committed to providing the guidance, resources, and support to students preparing for one of the most challenging and prestigious examinations in the country. We organize various activities including lectures, workshops, and mentorship sessions to help students navigate their journey towards their civil services. The goals of Uran are simple yet profound: to inspire, to guide, and to prepare students to become the future leaders who can contribute to the growth and development of the nation. And today, as part of this very mission, we have gathered here to listen to two exemplary individuals who have walked the path that we aspire to tread. They will share their experiences and insights, providing us with the valuable lessons and inspirations that they have encountered along. Today's session is part of our ongoing lecture series aimed at equipping students with the knowledge and inspiration needed to excel in the civil services examination. These lectures are designed to provide the insights into the various aspects of this examination, including the preparatory phases, their strategies, the challenges along, and the realities of life in the field of civil services. The theme of today's session is particularly very special as it combines both the journey of preparing for the civil services examination and also the experiences of serving in the Indian police services. We are privileged to have with us two distinguished members and speakers with us here. Mr. Priyanshu Jain, who secured an All India rank of 808 in the Civil Services Examination 2023, and Mr. Vinay Kumar Yadav, an officer in the prestigious Indian Police Services. Their journeys are a testament to the hard work, perseverance, and dedication, and I'm certain that their stories will inspire and motivate us all present here today. I'd also like to thank Dr. V.A.B. Raman sir, Sarv Chetan sir, Pooja ma'am, and Mahesh Chaudhary sir to spare the time and be with us in this session. Now it is my pleasure to introduce our esteemed guest speakers with us for today's session. Our first speaker, Mr. Priyanshu Jain, is an alumnus of Shaheed Bhagat Singh College, where he completed his BCom program in the year 2018. He is an inspiring example of how determination and hard work can lead to success in this very civil services examination. With an All India rank of 808 in the 2023 examination, Mr. Jain has made us all proud, and we are thrilled to have him back at his alma mater to share his journey with us. Our second speaker, Mr. Vinay Kumar Yadav, is an officer of the Indian Police Services. Sir has completed his BTech in Computer Science and did his Masters in Geography from JNU. Sir has also served as the Deputy SP for 2 to 3 years before joining the prestigious IPS, having qualified with Geography as a subject with his optional. Mr. Yadav has been serving our nation with distinction, and his experiences in the IPS provide us with a unique perspective on the challenges and rewards of serving in one of the most prestigious services that is present in our nation. Dear friends, please join me in welcoming our esteemed guests with a round of applause.
Firstly, I'd like to request Mr. Vinay Kumar Yadav to come ahead and Dr. Sir Chetan Sir to felicitate him with the memento and anniversary. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Raman sir, who is the IQSC coordinator of our college, and Ms. Pooja ma'am to felicitate Mr. Priyanshu Jain with the memento and anniversary. Now I'd like to request Sasank sir to give his welcome address and start the session. Very good afternoon to everyone. It's a matter of great pleasure that we are meeting after a long vacation, and this is our first program for this year. I hope you will be getting to know about how to prepare for the exam, because we have in the previous year we have already conducted many lectures about how to prepare for the exam. I think their inspiration journey, their success, and how they have managed themselves to steer through the hardship, ये सारा कुछ ये they will be explaining, and you people, like, this is your the best stage to start preparation for this exam. You can learn a lot from all of them, and in fact feel free to ask any type of questions from them, because they all will, like both these persons who are sitting over there, they all have started preparation like us only, and now they are on that side of the, so it's their determination and dedication for this prestigious services that they have made it to. So my best wishes for this program. Thank you to both the speakers for taking out your valuable time and making it like to present over here. Thank you Chetan sir and Mahesh sir, Raman sir and Pooja ma'am. Thank you everyone. Thank you sir for your encouraging words. It is now time to dive into the core of today's session. So without further ado, I invite Mr. Priyanshu Jain to take over the session to provide his valuable insights. Please, sir. Good afternoon, respected teachers, esteemed guests, members of the society, and my dear friends. As you have already known from my introduction that I am a student of Shahid Bhagat Singh College, batch of 2018 BCom program. I cleared this examination in my 5th attempt. This was my 3rd mains. Even though I had commerce as my graduation subject, I chose philosophy as an optional subject, which is different from what I studied in my graduation, and I had no background in philosophy. But still, I found the subject very interesting. That's why I chose philosophy. I will deal with it in the later part of what I'm going to say today. So initially, I want to know from one of you that what do you know about this examination? So based on that, I can start telling you what I can tell you. So any one of you, what do you know about the civil services examination, or in general, do I start from the starting itself, the stages of the examination and all? As you know, there are 3 stages: prelims, mains and interview. So in the last 2 to 3 years, we have seen a slight change in the pattern of the not only the prelims examination but also the mains examination. So post 2020, there are 2 papers of prelims, as you already know. So the second part of the prelims paper, that is the CSAT, that has become a little tough. So generally the question is that how do we prepare CSAT and how do we deal with it along with the general studies paper, because one can to an extent understand or study about the general studies paper, but the CSAT paper becomes a difficulty generally for people, those who come from the humanities background. So I would suggest you that you read the syllabus of UPSC. There are certain sections of CSAT that you can target. Like from the last 4 years since I am giving the prelims examination, I have cleared the prelims thrice and also with good marks. So I can tell you with surety that in CSAT, focus on the low-hanging fruits. For example, there are 25 to 30 questions that come from reading comprehension. So first try and solve that, because if you get the confidence of solving 30 questions, there are 80 questions in CSAT paper. You will be able to solve the other questions with more ease. After solving those 30 questions of English comprehension, you can come to the questions that are related to, say, profit and loss, you can say clock, calendar, these low-hanging fruits.
don't jump directly into the permutation and combination. Now, I have seen a lot of stories about a 2022 attempt and 2023 attempt, because there were 20 to 25 questions that dealt with permutation and combination and other such tough topics that are very difficult for humanities student to solve. So try and avoid that questions and do which are low hanging fruits. So that will help you in CSAT. And make it a practice that you solve 10 to 15 questions of CSAT every day, no matter what. If you are wholeheartedly dedicated to the preparation, take it as an exercise. Late night or before going to sleep, solve 10 to 15 questions of CSAT every day, and that will help your confidence and also make you practice of maths questions, because humanities background, it becomes difficult for us to deal with CSAT questions. So that part you can take care of. And in the paper one, that is general studies. General studies, I would say, stick to the syllabus, choose one book, and after that don't deviate. Do all your research before choosing that book. For example, there are different books for Indian polity. Some choose Lakshmikant, others decide to take the NCERT along with DD Basu also. But once you choose the book, don't deviate. Wholeheartedly read that book 5 to 10 times, but read only that book. So that will help you rather than going for 2 to 3 different books and confusing your own mind. So it will be better for you that you choose one book, and after that don't listen to anything the outside noise or anyone else tells you that do this, do that. No. Just choose one book and then after that start reading that. And also there are different strategies to how to prepare for general studies. Some choose different subjects on the alternate day. For example, there are Monday they will study polity, Tuesday they will study geography. So that is one approach you can follow. Or another approach is for 15 days continuously you study a particular subject and then complete the subject and try and solve the answers of that subject. So you can choose according to your own convenience and suitability. That is no question in that you can choose according to your wish. So, and the main thing after you have done your studies in general studies is practicing. Mocks play a very important role. For example, if I tell you my story, 2019, I gave my first prelims with commerce as optional because I had no guidance, no experience in UPSC. I just filled the form and sat for the exam with commerce as optional. I had not studied anything. And after that, surely I was not going to clear because I was not serious, and I gave the attempt like that only. So don't do that mistake. Your attempts are precious. Choose wisely, prepare beforehand, and then sit for the exam. And after you do, practice mocks. In my first attempt, I did not give a single mock before attempting the prelims examination. And I got very less marks, nearly 25 marks. So you can understand, very low from the cutoff. So after that, I made it a point that I'll practice all the mock tests and I'll give as many mock tests I can possibly give. And the good side of COVID was that I got an extra time in my second attempt. That was in October 2020. So I made it a point that I remember I gave nearly 50 to 60 full-length mock test paper for my second attempt, no matter what the result was. And with God's grace, I got 120 marks in that year prelims. So you can understand the correlation of mock test practice and its result in the examination. 2019, 0 mock test paper, and the marks were 25-30 marks. And 2020 prelims attempt, 50 to 60 full-length mocks. I'm not talking about sectional mocks. Sectional mocks, if I add, then it would be more than 100. So full-length mock test paper, wholeheartedly I gave, clearly outscoring the GS cutoff. GS cutoff for that year was, I think, so 92 or 94. I got 120 marks. Same thing, now I got the hang of, I'm talking about only prelims right now. I got the hang of prelims that मुझे इतना, I can use Hindi also, I guess. So मुझे इतने mock test करने हैं, and then I will be able to secure good marks. So 2020 में मेरा मेंस तो नहीं हुआ, मेंस के बारे में बाद में बात करूँगा. 21 में जब वापस मैं प्रीलिम्स देने के लिए बैठा, तो बस मुझे ये था कि मुझे इतने मॉक पेपर देने हैं, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा. सेम अटेम्प्ट 2021 में भी 115 मार्क्स आए. उस साल कट ऑफ और शायद नीचे गई थी 88 जनरल कैटेगरी कट ऑफ, तो उससे भी ऊपर जाकर मार्क्स आए. तो वही चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस को फॉलो करो. डोंट रन आफ्टर कि ये करने से ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, जो पढ़ा उसका मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको वो रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा. तो ये जो मैंने 2020 में सीखा था, यही मैंने 2020 में किया, 21 में किया, 22 में किया, 23 में किया. 4 साल कंटिन्यू. ये लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ प्रीलिम्स के पेपर्स थे, पर 4 साल क्लियर हुए. कारण यही था प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस भी की एक प्रोसेस बन गया था कि जैसे ही पढ़ाई करी मॉक टेस्ट,
तो ये आप एक अपने अंदर इनहेरेंटली डाल दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा. सो प्रीलिम्स, आई थिंक सो आई कैन गाइड यू मोर अबाउट प्रीलिम्स इन सक्सेस. मेंस में मेरा 3 बार मेंस नहीं हुआ, तो वो मैं आपको फेलियर के पॉइंट में बता दूंगा कि मैं क्या गलती करता था कि मेरा मेंस नहीं होता. बट प्रीलिम्स में आई गॉट दी हैंग ऑफ इट कि सीसेट पे थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ध्यान दो, जो मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया. और जो जीएस का पेपर है उसमें प्रैक्टिस, जो आपने पढ़ा उसके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो. मार्क्स मैटर नहीं करते. मार्क्स, अब एक स्टोरी ऐसी भी है कि 2020 में एग्जाम से 15 डेज पहले एक मॉक टेस्ट में मेरे 50-55 मार्क्स आ रहे थे. बट डोंट लेट द मार्क्स गेट टू योर हार्ट. ठीक है, वो एक प्रोसेस है, कभी गलती होती है, सीखो उससे, वो मिस्टेक वापस वहाँ रिपीट नहीं करनी. तो ये प्रीलिम्स में आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ये बहुत बेनिफिट करेगा. ओके, एंड नाउ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इन मेन्स आई कैन सी यू दैट मेन्स में बार बार मेरे से गलती, बहुत सारी गलतियाँ होती थी. सबसे मेन गलती कि मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी. आई ऑलवेज यूज टू बिलीव कि पढ़ लूँगा तो वहाँ लिख लूँगा. बट आप इमेजिन करें कि 9 पेपर्स होते हैं, आपको 5 दिन के अंदर, ऐसे का पेपर एक दिन में एक ही होता है, बाकी जो 8 पेपर है एक दिन में 2 पेपर होते हैं. सुबह की एक शिफ्ट होती है 9 से 12, दूसरी शिफ्ट होती है 2 से 5. इफ़ यू डू नॉट हैव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप वहाँ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, वो आपका ब्रेन वहाँ पे काम करना बंद कर जाएगा. तो 2020 में जब मैंने मेंस दिया, 0 प्रैक्टिस, तो रिजल्ट भी फिर बिल्कुल ही मतलब कट ऑफ से बहुत ही दूर है. तो वो चीज़ मेरे को लगी कि यार थोड़ा प्रैक्टिस तो करते हैं. तो 2021 में मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करी, पर कुछ सेक्शंस तब भी मैंने इग्नोर किए कि मैंने कहा ऐसे तो वहाँ लिख लेंगे. और फिलॉसफी का जो मेरा पेपर 2 है उसमें थोड़ा जनरल स्टडीज़ का पार्ट आता है, तो मेरे को लगा कि वहाँ भी कुछ लिख लेंगे, तो उसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी. तो पेपर 2 में 2021 में आई गॉट 109 मार्क्स और पेपर 1 में आई गॉट 141 मार्क्स. तो ये जो डिफरेंस है, मैं कट ऑफ से 2-3 नंबर से ही रह गया था 2021 में. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि एक ही बार में सब कुछ सही कर देना, ये जो गलतियाँ मैंने करी है बार बार अलग अलग स्टेजेस पे, ये करने की करना ही मत आप लोग. तो ये चीज़ आप सीखने की कोशिश कर सकते हो. तो 23 में मैंने यही टारगेट रखा था कि आई डू नॉट केयर कि क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा. इतनी यदि मैंने टेस्ट सीरीज ली है, ये सारे टेस्ट मुझे लिखने हैं, चाहे ऐसे हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे जनरल स्टडीज़ के पेपर हो. सो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता रहा. उसमें भी अब कई जगह एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आते हैं, तो ओके कोई बात नहीं. बट जो मेरा प्रोसेस है, जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इज कि प्रोसेस पे ध्यान दो, अपने आप वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा. तो ये चीज़ मैं मेंस में आपको बता सकता हूँ कि मेंस में आप ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि गलती यही है कि अपन आंसर राइटिंग नहीं करते, सोचते हैं कि थोड़ा और पढ़ लो तो थोड़ा और अच्छा आंसर लिख दूंगा. जो परफेक्शन वाली बात है, इसमें परफेक्शन वाली कोई है ही नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चन होते हैं, यू हैव टू जस्ट राइट एवरेज आंसर्स. तो आप वही है कि स्टार्ट राइटिंग आंसर, आंसर राइटिंग भी नहीं कर रहे, आपको जोर आता है आंसर राइटिंग करने में, तो ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए कि अच्छा इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है इस आंसर का, मैं कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी कैसे हो सकती है, इसका कंक्लूजन कैसे हो सकता है. सो आपको माइंड वैसे वायर करने की कोशिश करिए, ना कि मैं वहीं लिख दूंगा वहीं हो जाएगा. वहाँ आपके पास इतना टाइम नहीं होता सोचने के लिए. सो दैट इज द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि जो भी आप पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस करो, नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस. सो अब कोई ऐसा कुछ Q&A सेशन टाइप्स आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप पूछ लीजिए. बाकी मोनोलॉग में तो फिर अब आई कैन डिविएट कि इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर दिया है, ऐसे कुछ. Yes, okay. See, I was a student of Shahid Bhagat Singh College and many of you have doubts कि if I become a part of a particular society, मेरी पढ़ाई थोड़ी हैम्पर हो जाएगी, ऐसा कुछ. I was a part of 4 societies. Young Entrepreneur Society में 3 साल मेंबर था, रिवॉल्यूशनिस्ट डिबेटिंग एंड क्विजिंग सोसाइटी में मैं मेंबर था, इकोनॉमिक सोसाइटी में मैं बीकॉम का स्टूडेंट होते हुए भी इकोनॉमिक सोसाइटी में भी मेंबर था. सो दिस थिंग्स हेल्प यू रादर देन डिटर यू. तो ऐसा मत सोचना कि मैं यदि कोई सोसाइटी का पार्ट हूँ तो ये मेरी प्रिपरेशन के अगेंस्ट जा रहा है. आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. जो मेरा इंटरव्यू हुआ था यूपीएससी में, आई रॉट इट इन द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कि आई वॉज अ मेंबर, एसोसिएट मेंबर इन द यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी प्रोजेक्ट विजडम. सो नाउ हाउ इट इफेक्ट्स योर ओवरऑल पर्सनैलिटी. ऐसा नहीं कि ये पेपर सिर्फ ब्रॉड लर्निंग से आपका क्लियर हो जाएगा, आपको ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रखना है. हॉबीज़ में मैंने लिखा था प्लेइंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. सो डोंट बिकम टू मच इनटू कि सिर्फ पढ़ना ही है पढ़ना ही है पढ़ना ही है. नो, दिस एग्जाम इज मोर देन दैट. यू हैव टू ओवरऑल डेवलपमेंट आपको पर्सनैलिटी का करना होगा. 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वो स्टेज की तो मैंने बात ही नहीं करी. तो वो चीज़ आपकी सिर्फ रोट लर्निंग से नहीं आएगी, आपको सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है और सब चीज़ों का टाइम डिवाइड करके. टाइम मैनेजमेंट इज़ द की पूरे प्रिपरेशन की फेज में. तो वो आप इग्नोर या नेग्लेक्ट ना करें. कोई आप बुक रीड करते हैं तो वो भी बुक रीड भी करें और पढ़ाई भी करें साथ में. सो
societies I think so plays a very important part in the overall personality development. So दोनों को बैलेंस करने की हम कोशिश करें, थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट स्टिल ट्राई एंड बैलेंस इट. एंड इफ कोई क्वेश्चन हो जनरली आपको कुछ पूछना हो तो वो पूछ लीजिए, ज़्यादा बेटर वो रहेगा, वरना एक पर्टिकुलर साइड जो मेरे को ज़्यादा लगता है मैं वो उस पर बोलता रहूँगा, तो बेटर रहेगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. कोई भी कितना भी कोई नॉर्मल क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज में था. यस प्लीज. यस तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बहुत कंफ्यूजन है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग लें या फिर ऑफलाइन कोचिंग लें. ओके. तो मैंने ऑफलाइन जो अपने दोस्तों से बात करी थी जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ली, तो उनका ये था कि हाँ हमें ऑफलाइन लेनी चाहिए. तो इससे हमारा ये होता है कि एक कंसिस्टेंसी आती है. पर फिर मैंने कुछ ऑनलाइन वाले दोस्तों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि तुम अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकते हो, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ. तो उसमें मैं ये पूछना चाहता था कि हम ऑफलाइन कोचिंग लें या ऑनलाइन. देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या ना ही कोई करेक्ट आंसर है इस चीज़ का. ये आपको अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन या पर्सनल कैपेबिलिटी पे डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या बेनिफिट रहेगा. फॉर एग्जांपल कि if आप बहुत ज़्यादा मानते हैं कि आप बहुत डिसिप्लिन है और बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है अपने शेड्यूल को लेकर, तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा वर्क करेगा. बिकॉज यू डोंट हैव कोई एक्सटर्नल आदमी आके आपको नहीं बोलेगा कि आपको तब पढ़ना है या तब ये क्लास करनी है. तो दैट विल हेल्प यू कि ऑनलाइन चूज करूँ तो बेटर रहेगा. एंड ऑफलाइन वालों के लिए ये होता है कि पढ़ने में तो बहुत तेज़ है और सब कुछ कर लेता है, बस वो एक धक्का लगने की ज़रूरत होती है. तो जो ऑफलाइन वाला है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ क्लास में फिजिकली जाकर ही आपको अटेंड करना पड़ेगा. सो दोनों ही अपनी जगह सही है, ये आपको पर्सनली डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ही प्रॉस कॉन्स बराबर है. कुछ लोगों को फिजिकल इंटरेक्शन से वो जो सामने डिबेट होती है उसी से ज़्यादा सीखने को मिलता है, कुछ थोड़ा सा थ्योरी सीख के अपने आप अप्लाई करके भी कर सकते हैं. सो इट्स योर पर्सनल चॉइस. दोनों के प्रोस कॉन्स देख के अपनी पर्सनैलिटी से सूट करके आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सर. एनी मोर क्वेश्चंस? कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं. Sir, Good I'm afternoon. not from Ecom Honors. So I want to ask you how to stay motivated throughout the entire journey, and you have given 5 attempts. It is very inspiring. I see. The thing is, sometimes this attempt which I got selected, I even did not want to give this attempt. ऐसा हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था, अब 1-2 अटेम्प्ट के बाद इस साइकिल में मैं फंस गया था कि प्रीलिम्स तो मेरा हर बार हो रहा, मेंस मेरा नहीं हो रहा. तो जैसे मैं प्रीलिम्स की तैयारी करता, मेंस हो जाता, 3 महीने मेंस में जाते, फिर उसके बाद मेंस के रिजल्ट का इंतजार करता. तो वो एक साइकिल सी बन गई थी कि छूटते ही पहले मैं प्रीलिम्स दे देता था. तो वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, वो करने की कोशिश करें. और मोटिवेशन इसमें वही है कि आप एक मेरे हिसाब से सेट टारगेट लेके चले, इतने अटेम्प्ट्स ना दें जितने मैंने दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है मेरे अकॉर्डिंग. पीपल कैन डिफर ऑन दिस. 2 या 3 अटेम्प्ट्स का टारगेट लेके चले, उसके बाद कोई प्लान बी हमेशा तैयार रखे. ये मेरी तरफ से बहुत बड़ा रिस्की स्टेप था कि मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था. वही हो सकता था प्लान बी की, यदि मैं कोई स्टेट PCS का एग्जाम या ऐसा कुछ दे देता. तो वो आप जनरली अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए अपने को. तो एक टारगेट ये लेके चले कि 2 या 3 अटेम्प्ट देने हैं होल हार्टेडली. उसके बाद आई विल सी अनदर प्लान बी, एंड उसके साथ साथ मैं तैयारी करता रहूँगा. तो इतने लॉन्ग वो जो लाइफ है वो थोड़ी आपको ज़्यादा डॉन्टिंग नहीं लगेगी. तो इसमें यही है कि उस 2 साल के टारगेट में आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे कि बस 2 ही अटेम्प्ट देने हैं, तो 2 में पूरा फोकस करके वो करने की कोशिश करें. Sir, as you are choosing philosophy as an option instead of commerce and accountancy, as you are choosing taking your first attempt, so what are the criteria in which you can choose philosophy? ओके. सी ऑप्शनल चूजिंग के आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि ये चूज करके आपको ऑप्शनल चूज करना है. बट प्राइमरीली आई थिंक सो आपको 2 चीज़ें देखनी होती है. पहला आपका इंटरेस्ट है क्या उस सब्जेक्ट में, और दूसरा है क्या प्रैक्टिकलिटी क्या है उस सब्जेक्ट की. अब दूसरे पॉलिटिकल साइंस लेते हैं या सोशियोलॉजी लेते हैं, इसलिए मैं वो ऑप्शनल ले लूँ, तो दैट विल नॉट हेल्प यू. आपको अपना इंटरेस्ट देखना है. उसके अलावा प्रैक्टिकलिटी ये कि क्या ये सब्जेक्ट जो है, सिलेबस जो है, इसका मैं 3 महीने में 4 महीने में प्रिपेयर कर सकता हूँ क्या अपने इंटरेस्ट के साथ. तो ये दोनों फैक्टर जब ऐड करेंगे तो आपको कोई ऑप्शनल चूज करना पड़ता है. आप जैसे आप BCom के स्टूडेंट है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट. आपका इंटरेस्ट है उसमें, आपका बैकग्राउंड भी हो गया क्योंकि आपने ग्रेजुएशन उसमें कर लिया, तो इट वुड बी अ गुड चॉइस फॉर यू. बट मुझे वो फीलिंग नहीं थी आ रही थी कि कॉमर्स में मैं वो कर पाऊंगा. और फिलॉसफी वॉज अ न्यू सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट था. उस साल मैंने ये देखा कि इसका सिलेबस भी छोटा है, तो मैं पढ़ लूँगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. बट 2021 में मेरे मार्क्स नहीं आए. सो यू हैव टू सी द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट कि इसमें मार्क्स आते या नहीं आते. कोई रैंडम सब्जेक्ट नहीं. सेफ चॉइस सबकी रहती है कि पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी ले ले, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं.
सो इंटरेस्ट प्लस द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द सब्जेक्ट दोनों को मिक्स करके आप अपना डिसीजन लें कि कौन सा ऑप्शनल आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो दैट वुड बी गुड. So my last question is how to prove students, as students is the most uncertain stage Yes, of yes. exam. Most of the students are eliminated in this stage. So how to do it? See, a general cycle in this whole exam preparation is that till from July to December, you prepare your mains wholeheartedly. जो चारों GS के पेपर है, ethics, essay, optional. ये मेन स्ट्रेटेजी ये रहती है कि एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल पे आप ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि दे कंस्टिट्यूट 1000 मार्क्स. तो दिसंबर तक यू फोकस होल हार्टेडली ऑन दैट एंड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर अलॉन्ग विद इट फ्रॉम जुलाई इटसेल्फ. तो दिसंबर तक आपका ये जो मेन कोर है वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद आप जनवरी से होल हार्टेडली प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं क्योंकि मई या जून में जनरली प्रीलिम्स होता है. सो दोज 5 months यू कैन होल हार्टेडली डेडिकेट. यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, यदि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो 3 महीने भी काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए क्योंकि बहुत रैंडम आता है. आपको डेली कुछ ना कुछ नया मिलता है न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए. तो वही है कि ये जुलाई से दिसंबर की जो साइकिल है वो मेंस होल हार्टेडली कि आपका मेंस बहुत स्ट्रांग हो जाए. फिर उसके बाद यदि फर्स्ट अटेम्प्ट है तो जनवरी से आप प्रीलिम्स की तरफ थोड़ा हो जाए. और मॉक टेस्ट जो मैंने पहले भी बताया दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सो कोई सी भी कोचिंग का कोई सा भी मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट ईयर पेपर, यस वन थिंग आई मिस्ड वाज कि एनालाइज द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी कि किस तरह के वो क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दैट वुड बिकम योर मेन सोर्स कि कैसे अप्रोच करना है इस एग्जाम को. सो दैट वुड हेल्प यू प्रीलिम्स के लिए. So actually, take the next newspaper is a necessary thing for most of the student values on once they download the PT365 for prelims and PT365. Yes, yes, yes. What is the correct way to choose a newspaper or magazine or the annual compilation, the PT365? सी आई वुड से दैट आप एक इंटरेस्ट के रूप में डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए. कोई उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं. नोट्स सारे वो PT 365 मेंस 365 में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे. जस्ट वो एक होता है ना कि इंटरेस्ट से कि आप आज क्या हुआ नेशन में, कंट्री में, वर्ल्ड में आज क्या हुआ, दैट यू स्टार्ट रीडिंग. सो दैट विल हेल्प यू मोर बेटर. फिर उसके बाद जब वो कॉम्पिलेशन आता है फिर उसको आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये तो ऑलरेडी मैंने रिवाइज कर लिया. मेन चीज़ इस एग्जाम में है कि कितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर में वो जो आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके ही जाओगे तो वो आपको हेल्प करेगा. रादर देन एक बार चीज़ पढ़ी है 100 चीज़ें पढ़ी, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा. बाकी 10 बार एक ही चीज़ को पढ़ा है तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा. सो आप यही कोशिश करो कि न्यूज़पेपर एज एन इंटरेस्ट पढ़ो कि डेली क्या चल रहा है, वर्ल्ड, नेशन, कंट्री, बिजनेस में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है. एंड फिर उसके बाद जब कॉम्पिलेशंस आते हैं कोई सी भी कोचिंग का, वो आप उठा के देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा. तो खुद के कन्वीनियंस के लिए आई थिंक सो न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. तो आप वो कर सकते हैं. ठीक. एनी मोर क्वेश्चन या और कुछ स्पेसिफिक? यस. Good afternoon, sir. I am from B History Honors. My name is Surya. सर जैसे अभी हमारा जो टाइम मैनेजमेंट का है ना काफी प्रॉब्लम हो रहा है. इससे हमारा जो कॉलेज है वो सुबह 9 से 4 बजे तक चल रहा है. एकदम पैक शेड्यूल है. फिर घर जाते हैं, फिर वहाँ भी कॉलेज का ही पढ़ना है, एग्जाम्स आ रहे हैं और साथ में यूपीएससी को हैंडल करना. तो अभी बस यूपीएससी के सिलेबस में टच में रहना है कि यूपीएससी में भी घुस के भी अच्छे से पढ़ना है. विच ईयर स्टूडेंट यू आर? सेकंड ईयर. सेकंड ईयर. ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए. वो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसा काम करिए कि दोनों में थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाए. कि कॉलेज में भी अपने को फोकस रखना है और थोड़ा सा जो है अभी स्टार्टिंग में आप सेकंड ईयर में है तो न्यूज़पेपर रीडिंग, जो आपका करंट अफेयर्स है, थोड़ा थोड़ा आप अवेयर रहें. अभी बस टच में बना रहना सही है. टच में. और थोड़ा सा यदि आपको कॉलेज से निकलते ही एग्जाम देना है तो थोड़ी आप प्रैक्टिस भी करते रहें. 1-2 आंसर लिखिए. आप जैसे आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज़ है और मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री ऑप्शनल ले सकते हैं आप शायद. मैं PSIR. सो ठीक है, तो थोड़ा आप आइडिया लेते रहें क्योंकि आपको जब निकलते ही एग्जाम देना है तो वाई लैग बिहाइंड. तो मैनेज करें. थोड़ा वो स्ट्रेस रहेगा 1-2 साल, बट आप इस यंग एज में ही थोड़ा स्ट्रेस ले तो बेटर है, बकायदा बाद में ले तो हैंडल इट, नो प्रॉब्लम. थैंक यू सर. एनी मोर क्वेश्चंस? यस. दो क्वेश्चंस. Yes. ओके. तो मेरा प्रश्न है कि मतलब मैं आउट ऑफ दिल्ली मतलब जाके तैयारी करना चाहता हूँ सर. मुझे मतलब मटेरियल्स में मतलब किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये 2-3 साल से ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि दिल्ली में रह के पढ़ाई करनी है, दिल्ली के बाहर पढ़ाई करनी है. मेरे हिसाब से दिल्ली के बाहर रह के ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो सकती है आज के टाइम पे क्योंकि सारा मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है. आप यहाँ से बुक्स लेके चल जाएंगे जो भी है और एक बार अपने होम टाउन में जाके प्रिपेयर करेंगे. आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. मेरा एक फ्रेंड है अंकित, लास्ट ईयर 173 रैंक थी, IAS ऑफिसर, हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट थे, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे. उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया एग्ज़ाम और कभी दिल्ली नहीं आए.
एक बार वो मेंस देने दिल्ली आए, उनका बिल्कुल मन उठ गया कि कैसी जगह है, इतनी भीड़ भाड़, बिल्कुल ग्रामीण इलाके से आते हैं तो यहाँ देख के एकदम से डर जाते हैं। तो अपने घर गए, वहाँ से उन्होंने अटेम्प्ट दिया, सब कुछ एक ही बार में क्लियर, सारे रिसोर्सेज सब कुछ ऑनलाइन लिया उन्होंने। तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि आपको दिल्ली में रह के पढ़ाई करनी है या वहाँ रह के, जैसा आपको सूटेबल लगे। सारे रिसोर्सेज आजकल सब जगह अवेलेबल है, इंटरनेट की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी है, बिना एग्जाम्पल के मैं बोलता तो सब्सटेंशिएट नहीं होती बात, बट जो मेरे साथ में बिल्कुल जो मेरे साथ ही पढ़ाई करी थी उनका यदि ऐसे क्लियर हुआ है तो फिर तो एग्जाम्पल अच्छा ही है। एनी मोर क्वेश्चंस और देन ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your insightful remarks. May I now invite Mr. Vinay Kumar Yadav, IPS, to share with us his wealth of experiences of having served in the public services. Thank you. Thank you very much for this warm welcome. So much sleepy faces. Post lunch है, सेशन लगभग लोग सो जाते हैं, हम भी सो जाते थे जब पढ़ते थे। तो जो स्टैटिक चीज़ थी कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या प्रोसेस है, वो तो प्रियांशु ने बता ही दिया। पहले थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाए, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए, ताकि आप भी ना सोए और 10-15 मिनट में बोलो तो मुझे भी अच्छा लगे। तो कितने लोग हैं जो कि मन बना चुके हैं कि हाँ सिविल सर्विसेज में ही मुझे अपना करियर बनाना है, या जिसके घर वाले चाह रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चा IAS IPS बने, ज़बरदस्ती वाले हैं। तो ज़बरदस्ती वाले कितने लोग हैं कि चाचा फूफा का लड़का बुआ की लड़की बन गई तो घर वालों ने कहा कि तुम भी बनो। नहीं, हमारी सोसाइटी एक्चुअली में उसी का रिफ्लेक्शन है कि हमारा करियर किस पाथ पे जाएगा। तो ऐसा कौन है जो ज़बरदस्ती आ गया क्लास में आज, क्योंकि आपके पास चॉइस थी, आप जा सकते थे, आप बैठे हैं क्लासेस के बाद भी, तो या तो आपको ज़बरदस्ती प्रोफेसर्स ने बैठा लिया कि नहीं बैठो भाई, स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, बाहर से बुलाए हैं कि आगे मैम बैठी हैं, कल क्लास में असाइनमेंट होगा तो थोड़े बहुत भी लीनियंट नहीं होंगे। तो है ऐसा कोई जो ज़बरदस्ती इस करियर पाथ पे जाना चाह रहा है? अच्छा, कितनों ने मन बना लिया है कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना है? आधे। और बीच वाले जो ना उधर थे ना इधर थे, वो कहाँ हैं? चलिए ठीक है, अच्छी बात है जिन्होंने अपना मन बना लिया है। बहुत ही नोबल सर्विस है। UPSC एक सर्विस नहीं है, ये क्लब है 24 सर्विसेज का, और जो रील में तो चलता है IAS IPS, बस उसके अलावा तो कोई देख ही नहीं पाता है कि उसके अलावा IRS IRMS IRTS ITS ICLS तमाम सर्विसेज हैं, ISS। तो इतनी सर्विसेज हैं और उनकी इतनी डाइवर्सिटी है कि आप किसी और प्रोफेशन में रह के, एक टीचिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो जिसको मैं इससे भी नोबल प्रोफेशन मानता हूँ। मेरा अपने पर्सनल चॉइस है, डिफर कर सकती है। अब 2-3 एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थियरी वाला मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं इंगेज करके आपको कुछ समझाता हूँ कि क्यों, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा बहुत भी जगे, और जगे तो अच्छे से जगे। अगर आप ये है कि हाँ ठीक है सब कर रहे हैं तो उस भेड़ चाल में मैं भी कर लेता हूँ, लेट्स गिव इट ट्राई, तो वो मत कीजिएगा। इस सेशन के बाद या तो आप अपना मन पूरा बना लीजिए या फिर आप इससे निकल जाइए। ये आपके बर्निंग ईयर्स हैं कि अभी आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा, कि आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे, कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कि एकेडमिक्स में आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो वो यही फर्स्ट और सेकेंड ईयर यही डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। थर्ड ईयर में आते आते घर वालों का बर्डन हो जाएगा, आपका खुद का करियर का इतना बोझ हो जाएगा कि फिर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर आप जो आपका साथी जा रहा है कर रहा है वो वहीं पे उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। हम भी जब गए थे, हमारे साथ बहुत लोग गए थे, मैं भी एक्सीडेंटल ब्यूरोक्रेट बन गया, मैं भी नहीं आना चाहता था, पर कुछ नहीं हो दिख रहा था। 4th ईयर में आके लगा कि अब क्या किया जाए, तो फिर एक लहर थी कि चलो UPSC की तैयारी करते हैं, तो बस उसमें लगे। और फिर उसमें ऐसा फंसे कि बस कब दिन गुजर गए, कब सरकारें बदल गई, समझ में भी नहीं आया उस तैयारी के दौरान। तो जो चैलेंजेस हैं, मैं चैलेंजेस बता देता हूँ, क्योंकि जो रील्स पे चलते हैं कि आजकल ओझा सर बता रहे हैं कि अरे ओझा की बकैती और पिंबल की डकैती।
उसके अलावा भी एक दुनिया है, वो एक्चुअली वो भी एंगेज करने के लिए, हिस्ट्री इतना बोरिंग सब्जेक्ट है कि बच्चों को एंगेज करना पड़ता है, तो वो अपनी कहानियाँ किससे सुनाते हैं, वो उनका एक तरीका है पढ़ाने का। तो सिविल सर्विसेज 24/7 एक जॉब है, खासकर क्योंकि सिविल सर्विसेज का जब नाम आता है तो सीधा IAS IPS ही मेन हमारे मानस पटल पे आती है, हमारे जहन में आती हैं कि IAS IPS। अब IAS IPS का जो आप प्रोफेशन में देखेंगे, उनका डे टू डे वर्किंग देखेंगे तो 24/7 होती है। यू विल बी हेडिंग ए डिस्ट्रिक्ट एज DM और एज एन SP। तो उस डिस्ट्रिक्ट में छोटी से छोटी चीज़ हो रही होगी तो उसके लिए आप पर्सनली जिम्मेदार रहेंगे। ये नहीं कि आपके SDM ने गलती की दी, आपके कानूनगो ने गलती कर दी तो आप जिम्मेदार नहीं, जिम्मेदारी आपकी भी तय होगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है बेगूसराय का। कोई बिहार से या फिर सो मैंने तो आप रिलेट करेंगे उस चीज़ को। तजिया निकलता है उधर की तरफ, और तजिया की खास बात यह है कि उसका रूट डिसाइडेड होता है, हर साल परंपरागत वो उधर से ही निकलता है। तो बेगूसराय में तजिया निकल रहा था, तो पिछले एक बरगद का पेड़ पड़ता है उस तजिया की जो पाथ था, जो जिस रास्ते से जाते थे, तो एक साल में उस बरगद की शाखाएं थी वो नीचे आने लग गई। तो जो भी 10 फीट से ऊंचा अगर कोई भी चीज़ जा रही है तो उसे टकरा के जाएगी। अब ताजिया काची खासी ऊंची होती है, 12-12, 15-15 फीट ऊंची होती है, तो वो उसी ट्रेडिशनल रूट से जा रही थी। अब हुआ ये कि ये तो इससे टकराएगी तो ताजिया खराब हो सकती है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलिए थोड़ा सा इसको काट दिया जाता है बरगद के पेड़ को। अब बरगद का पेड़ काटना, आप सोच सकते हैं कितना किसी की आस्था है उससे, गलत सही इसमें नहीं जा रहा मैं, पर आस्था है। अब ये हुआ कि ताजिया को मोड़ दिया जाए, पर ताजिया कभी भी मुड़ेगा नहीं, जो पारंपरिक रास्ता उसका चलता आ रहा था उससे वो जाएगा। अब दूसरा दो पक्ष हो गए, दो कम्युनिटीज हो गई, दोनों अड़े हुए हैं कि हम बरगद नहीं काटने देंगे और कह रहे हैं हम ताजिया नहीं लेके जाने देंगे इधर से। अब उस पर पूरा SP, DM, SDM सब आ गए हैं, किसी के पास कुछ सुझाव नहीं, कोई वो नहीं, दोनों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाया गया कि भाई बताओ क्या किया जाए। तो इतना चैलेंजिंग था, उस पर डिसीजन लेना है। अब आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं, डाउन द लाइन 5 to 6 years आप भी DC या SP होंगे, कहीं पे DM होंगे, तो वो क्विक डिसीजन और कितने लोग रिलाय कर रहे हैं आप पे, और वो सौहार्द, वो पीस बना रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्विक डिसीजन हो सकता है, वो एक डिसीजन मेकिंग, वो आपकी तैयार होगी। तो वहाँ पे ये अच्छा, आप में से कोई सुझाव देना चाहिए कि क्या किया जाना था ऐसे में, बताएं। बताने मेरा ये डिसीजन सही है गलत है, लेकिन और उससे पहले से तजिया को छोटा कर दिया जाता था। ताजिया एक बार जब बन जाता है तो उसके बाद उसका साइज छोटा नहीं होता। ताजिया जब जैसे कावड़ होती है, कावड़ को रख दिया खंडित हो जाएगा, वो इस तरह के ताजिया उन्होंने ले लिया, चला दिया, तो ताजिया को फिर वो छोटा नहीं करेंगे। सर अगर पहले से भी पता है पेड़ आएगी तो पहले से ही छोटा बनाया जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता था। ये उस टाइम पे जो परंपरागत उनका जो साइज बनता था, अभी देखिए जब जल लाते हैं कावड़ में तो इस साल 5 लीटर लेके आए तो अगले साल वो 6 लीटर लेके आएगा, वो घटता नहीं है, तो वो भी अपना बढ़ाते रहते हैं। खैर बैठिए, बहुत ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, मैं बता देता हूँ। उस टाइम पे जो DC थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रास्ते को 3 फीट खुदवा दिया, रास्ते को 3 फीट खुदवा के उसको बराबर करवा दिया गया, जिससे कि ना तो तजिया का हाइट कम हुई और ना ही बरगद की शाखाएं कटी। ये कहने का मतलब, मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ ये था कि आप पे इतने लोग रिलाय करेंगे, आपके डिसीजन मेकिंग इतनी क्विक, इतनी शार्प और इतनी सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, जो कि उस पूरी कम्युनिटी को सर्व करे उनके बेस्ट इंटरेस्ट में। तो ये चैलेंजेस आपके आने वाले हैं, ये इस पोस्ट की गरिमा है और इस पोस्ट पे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है वो। ये सिर्फ DC की बात होगी। DC जब आपके इनिशियल एयर्स में DC, DM अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, फिर जब आप जॉइंट सेक्रेटरी बनेंगे तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट को हेड कर रहे होंगे, तब आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे होंगे कि आप मान लीजिए PWD में जॉइंट सेक्रेटरी हैं, आज वहाँ पे कुछ सीवर की पाइपलाइन जा रही है, कल वहीं से इलेक्ट्रिसिटी की नीचे की तार जा रही है, फिर वहीं से कुछ और कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है,
तो एक काम के लिए आप 3 बार अलग अलग खुदाई करवा रहे हैं, जनता भी परेशान है, वो भी गालियां दे रही है। तो वो डिसीजन मेकिंग और वो पॉलिसी मेकिंग में आपका काम रहेगा। ये तो हो गए इसके। भाई अच्छा लग रहा होगा, कितने लोग, हम गाड़ियाँ बंगलों, उन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, जो कि आप देखते रहते हैं, आप जानते भी हैं, सब फैसिनेट होते हैं उसी चीज़ से। रात में अगर कोई घटना होती है, उसके लिए आपको ऑन द स्पॉट जाना पड़ेगा। अगर आप अपने पर्सनल टाइम को अपने प्रोफेशन को दे सकते हैं तो इस प्रोफेशन में आए। इस प्रोफेशन की डिमांड बहुत हाई है। रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे इनिशियली। ये नहीं कि आपने, जैसे कि मैं बताया था एडीएम साहब की बात, उनका अगले दिन ही ट्रांसफर भी हो गया था। तो ऐसा नहीं कि उनको रिवॉर्ड करके उनको कमिश्नर बना दिया गया था, नहीं, रिवॉर्डिंग बहुत कम है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है। आपको अपने परिवार के लिए टाइम नहीं मिलेगा। किसी रिमोट एरिया में आप सर्व कर रहे होंगे, रॉबर्ट्सगंज के जाके किसी तहसील में आप एसडीएम का चार्ज लेंगे स्टार्टिंग में, और आपका घर है राजस्थान के बाड़मेर में। 2 दिन की छुट्टी मिलती है, आप उसमें आप या तो बाड़मेर से आप अपना, जैसे आप कॉलेज के बाद जाकर आप कैफे ओपन करते हैं, ये कर लीजिए, या फिर आप अपने घर चले जाइए। तो ये चैलेंजेस हैं इस सर्विस के। ये सिर्फ आईएएस के नहीं है, आईपीएस के नहीं है, ट्रेड सर्विसेज में जाएंगे आप, कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज में जाएंगे आप, रेलवे मैनेजमेंट में जाएंगे, या आईआरएस में जाएंगे, कोई भी सर्विस हो, सब में चैलेंजेस हैं। तो एक तो इस सर्विस में अगर आपने आने का मन बनाया है तो इस चीज़ से फैसिनेट मत होइए कि मेरे को बड़ा बंगला मिलेगा, मेरे को इज्जत मिलेगी, गांव में फलाना काका का लड़का लग गया है, उसको बहुत इज्जत मिलती है, फूल मालाएं मिलती हैं। उस फूल मालाओं के पीछे के कांटों को भी आप समझिए कि जो ट्रेचरस जर्नी है, कि आप आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, फर्स्ट फिल्म, सेकंड फिल्म, थर्ड फिल्म, ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें आप एक बार फंस गए और आपको गॉड फॉरबिड सफलता नहीं मिली, तो फिर आप हर कदम पे हताश हो जाएंगे और आप आत्मसम्मान धूल चाटता दिखेगा। तो एक, जैसे प्रियांशु ने कहा था कि एक करियर बैकअप, आप अभी बीकॉम, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स में हैं, तो एक अपना करियर बैकअप लेके चलिए। बीट कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, बहुत सारे लोग हैं आपके जो चेंज करेंगे एकेडमिक्स में जाने के लिए। तो एकेडमिक्स में भी जाना है तो उसके लिए भी आपसे प्रिपेयर करना होगा कि मास्टर्स में मेरे क्या वो रहेगा, स्पेशलाइजेशन रहेगी, उसके बाद फर्दर स्टडीज अगर मेरे को करना है तो कहाँ से करना है। यूपीएससी को करना है कि नहीं करना है, वो डिसीजन आपका अभी होना चाहिए इसी स्टेज पे। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक आ जाते लेट हो जाएंगे आप, क्योंकि इतनी फास्ट मूविंग हो गई है ना ये जर्नी कि कब आपका साल निकल जाएगा। जैसे प्रियांशु के साथ, ये पहले नहीं कि इनके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। मेरा 5th इंटरव्यू था जिस साल मेरे को आईपीएस मिला था। उससे पहले मैं सर्व कर लिया था 3.5 साल डिप्टी एसपी, बट पीटी दिए, फिर मेंस दिए, जब इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू आ रहा है मई में, 22 मई को, पीटी लग रहा है 28 मई को, 5 दिन, फिर से कोई पीटी मेंस इंटरव्यू, तो वो विशियस साइकिल बन जाती है, फिर उससे आप निकल नहीं पाते हैं। तो आप या तो डिसाइड कीजिए कि आपको सिविल सर्विसेज में आना है कि नहीं आना है। आना है तो कितने अटेम्प्ट मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लड़कियों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट ज़्यादा हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट कि जब आप बीए कर लें, बीकॉम कर लें, उसके बाद आप आइडियल सिर्फ यूपीएससी की तैयारी ना करें, या तो इग्नू से आप मास्टर्स कर लें या फिर किसी और प्रोग्राम में एनरोल हो जाएं। हालांकि वो बहुत टीडियस जॉब हो जाएगी, थोड़ा सा आपको अपना पर्सनल टाइम भी देना पड़ेगा, जो आप को सोने का, दोस्तों के साथ घूमने का, ये एक पर्सनल कॉस्ट है जो आपको देनी पड़ेगी। तो सिर्फ प्लेन बीए बीकॉम ऑनर्स करके भी आप ये सोचेंगे कि फिर फुल फ्लेज आप यूपीएससी की तरफ चले जाएंगे, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आपको रिस्क को कम करना है, तो रिस्क को आप कम करेंगे तो आप या तो आप मास्टर्स में कहीं पे एनरोल हो जाइए, या फिर आप अगर कोई और प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा की कोई 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उस तरह के कर सकते हैं। और एक बात सिर्फ मैं कहूँगा, क्योंकि प्रिपरेशन के बारे में तो प्रियांशु ने सब बता ही दिया कि कैसे कैसे जर्नी होगी, वो एक ऐसे मोनोलॉग हो जाएगा कि मैं बताऊंगा कि पेपर वन क्या है, वो फायदेमंद नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर में कुछ हैं तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये टाइम है आपका ऑप्शन डिसाइड करने का, क्योंकि आप ऑनर्स में होंगे, कोई प्रोग्राम में होगा, तो आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है सब यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि अभी कि मेरे को यूपीएससी में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आपके पास 2 साल हैं, 2 साल में आप अपना अगर ऑप्शनल तैयार कर लेंगे तो योर जर्नी विल बी मच ईजियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चीज़ का है। यू वुड इधर गेट 230
अगर आप स्टार्ट करेंगे 3rd ईयर के बाद, और अभी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 300 की लाइन में आएंगे। तो ये 70 नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको 2nd और 3rd ईयर में करना होगा। फिर से मैं ये कहूँगा कि अपना मन बनाइए, पहले किसी के कहने पे, घर वालों के प्रेशर में बिल्कुल भी मत यूपीएससी में घुसिएगा। अगर आपको ट्रूली लगता है कि मेरे को ग्रेटर गुड करना है ह्यूमैनिटी के लिए, तो इससे अच्छी कोई सर्विस नहीं है। आपको डाइवर्सिटी हर चीज़ में, आज आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होंगे, कल हेल्थ डिपार्टमेंट में होंगे, फिर उसके बाद आप मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले गए, एक्सटर्नल अफेयर्स में चले गए, तो आपको डाइवर्सिटी आपको बहुत मिलेगी। आपका जितना पोटेंशियल है वो ये सर्विसेज आपसे निकाल के, बेस्ट आउट ऑफ यू निकाल के लाएगी। पर आज आपको डिसाइड करना है कि हाँ, क्या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि सच में मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है, या फिर ऐसे ही किसी ने कह दिया, एक सिफुगा चढ़ गया आजकल रील्स का। तो पर्सनल कॉस्ट बहुत है इसमें, आपको फैमिली भी मेंटेन करनी पड़ेगी। जो डिलेमाज, एथिकल डिलेमाज, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल, वो आपको हर जगह मिलेंगे। आज आपके स्पाउस जो भी होंगी या होगा, वो आप कहीं पे सर्व कर रहे होंगे, किसी और प्रोफेशन में होंगे या इसी प्रोफेशन में होंगे, तो क्या आप उस चीज़ को, वो कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार हैं? तो अच्छी चीज़ों के साथ साथ बुरी चीज़ों को हम ओवरलुक कर देते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब हम रियली फेस करते हैं उन चीज़ों को तो फिर सोचते हैं कि अरे यार क्यों आ गया, उस टाइम पे इतना अच्छा मैं एकेडमिक्स में था, मैं बाहर चला जाता, अपना मास्टर्स करता, अपना पीएचडी करता, एकेडमिक्स में अपना रिसर्च करता। तो ये चीज़ें आएंगी। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। एकेडमिक्स आप में जाना है आपको, कि आपको यूपीएससी में जाना है। यूपीएससी आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, किसी की थोपी हुई चॉइस नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो अगर आप चैलेंजेस पसंद करते हैं और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत, ये सिविल सर्विसेज आपको रेस्पेक्ट, आपको चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर बहुत देगा इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। यूपीएससी का आप अगर आप प्रिपरेशन कर, मैं आई मस्ट से कि प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, नॉट जस्ट फॉर कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, बट आपको जो नज़रिया मिलेगा वो बहुत बहुत आपको हेल्प करेगा आगे के लिए। अब ऐसा कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक कि बहुत से लोग डिलेमा में रहे होंगे कि करें कि ना करें, ये मेरी सिचुएशंस हैं, तो आप मुझसे, प्रियांशु से पूछ सकते हैं। और मेरी जैसे जर्नी की बात हुई थी कि स्टार्टिंग में मैं अपनी जर्नी बताऊंगा, तो सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, सबको अपने स्ट्रगल्स भारी लगते हैं। अब मैं कहूँगा कि मेरे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो जैसे सांग सर मेरे सीनियर रहे हैं, ये कहेंगे बहुत झूठ बोल रहा है, क्योंकि इन्होंने देखा है ऐसी कोई स्ट्रगल वाली लाइफ मेरी नहीं रही है। मेरी 4 सर्विसेज रही हैं, सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट रहा हूँ, मैं आईबी में रहा हूँ, डिप्टी एसपी रहा हूँ, आईपीएस रहा हूँ। तो मेरी कोई बहुत लाइफ ऐसी नहीं रही है कि मेरे स्ट्रगल से भरी रही हो। स्ट्रगल सबके होते हैं, अपने स्ट्रगल होते हैं, वो भारी लगते हैं। आपका स्ट्रगल मेरे स्ट्रगल से अलग हो सकता है। तो ये आपकी कॉल है कि आपको यूपीएससी में आना है कि नहीं आना है। आप इस रूम में बैठ गए हैं, 70-80 लोग हैं, आपको ज़बरदस्ती बैठाया गया है कि मन से बैठे हैं, दैट आई डोंट नो, बट अपनी कॉल लीजिए, आज ही लीजिए। और कोई क्वेश्चन हो यूपीएससी से रिलेटेड तो आप पूछिए, बताएं। मैं एक्चुअली स्टेट विषय करना चाहता हूँ यूपीएससी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करोगे तो आसान हो जाएगी चीज़, लेकिन मैं उतना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब एक ही चीज़ पर मतलब फोकस रखूँ, लिमिटेड समय दूँ, होए तो होए, नहीं तो फिर दूसरा अपना देख लेंगे। सर क्या ये सही होगा कि यूपीएससी करें या उससे अच्छा है कि स्टेट पीसीएस कर लें? देखिए, स्टेट पीसीएस जहाँ तक बिहार का मैं जानता हूँ, बिहार में ऑप्शनल हट चुका है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी का मेन फोकस 3 चीज़ों पर रहता है, ऑप्शनल, ऐसे और इथिक्स। तो कितना सब्जेक्ट मिल रहा है बीपीएससी में और यूपीएससी में, वो आपको देखना पड़ेगा। बट आई वुड से कि यूपीएससी और बीपीएससी ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। तो अगर आपको बीपीएससी करना है, गो फॉर इट। बीपीएससी में अभी तो पिछले कुछ साल से तो ठीक हुआ है कि वो हर साल एग्जाम ले रहे हैं, यूपीपीसीएस भी ले रहा है। बट अदरवाइज अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में, सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो यूपीएससी से आप स्टार्ट करें। सर मेरा मतलब है सर, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 10th क्लास से ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट रहा हूँ, तो जैसे सर ने बताया कि प्रीलिम्स निकल जाता है, लेकिन सीसेट में 2 एंडिंग कोर्स को हमको करना चाहिए। तो सर मैथ हमारा 10th क्लास से रही नहीं, तो मैथ की तैयारी से मैं कब से करनी चाहिए?
ऑफ सीसेट की? जैसे जब आप सब्जेक्ट का सीसेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10, पर 2 साल 3 साल पिछले का आप अगर उठा के देखेंगे तो उसमें वो परमुटेशन कम्बिनेशन जो 11th 12th में पढ़ते थे वो आता था। बट 2024 का एग्जाम जब आप देखेंगे वो उसी पैटर्न पे है जो 15, 16, 17 के पैटर्न पे आया था। तो चेरी पिक करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस। देयर विल बी 10 to 12 रीजनिंग क्वेश्चंस जो कि हलवा टाइप के होंगे, इजी। तो आपको फर्स्ट रीडिंग में जब आप कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि हाँ कि मेरे को पहले क्या कॉम्प्रिहेंशन उठाना है कि मैथमेटिक्स उठाना है कि रीजनिंग उठानी है। तो आप मन बना के जाएंगे एग्जाम में कि मेरे को रीजनिंग पहले करनी है, तो आप एक नज़र 5 मिनट में ये मार देंगे कि हाँ रीजनिंग के क्वेश्चन कौन से हैं, उनको मार्क कर लेंगे। अगर 7 से 8 से 10 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के जो कि आते हैं हर साल, तो वो आपको इनिशियल बूस्ट देंगे कि हाँ मेरे 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको कितने 18 क्वेश्चन वो सही करने हैं विद एक्यूरेसी ऑफ कोर्स। देखिए टुडे के सिनेरियो में देख रहे हैं मैथ बहुत टफ आ रहा है इसमें तो। हाँ, मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वो टफ आ रहा है, तो वो अगर आप एनालाइज करेंगे तो 20 क्वेश्चंस में वो मैथ सिमट जा रहा है, बट उसका जो डर है वो हमारा लास्ट तक नहीं निकलता। आप किसी भी जो एग्जामिनर के माइंडसेट से देखिए, कोई भी अगर आप सेट उठा के देखेंगे तो उसके पहले 3 क्वेश्चन बहुत टफ मिलेंगे। ABCD आप कोई भी क्वेश्चन उठा कोई भी सेट उठा के देखेंगे तो पहले 3 से 4 से 5 क्वेश्चन बहुत टफ मिलते हैं। वो सिर्फ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर रहे हो। पहला क्वेश्चन आपका गलत नहीं आ रहा, सेकंड गलत नहीं आ रहा, थर्ड नहीं गलत आ रहा, तो आप पे एक प्रेशर आ जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन जो आपको आ रहा होगा वो आप सिली मिस्टेक कर देंगे। तो यूपीएससी का ये सेट पैटर्न है कि वो हर सेट में पहले 2 से 3 क्वेश्चन टफ बनाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा देगा पहले सेट में। वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो एक पेज की होगी, लगभग 1000 से 1200 वर्ड होंगे, कभी कभी 700-800 मिल जाते हैं, और एक क्वेश्चन रहेगा उसमें। तो आपको लगेगा मैंने तो 5 मिनट तो मैंने पढ़ा है, एक मेरा क्वेश्चन हुआ है, पता नहीं वो भी सही, एक सब्जेक्टिविटी है उसमें भी, क्योंकि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछता है। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में ये है कि हाँ कॉम्प्रिहेंशन लास्ट के लिए रख सकते हैं आप, तो आप लास्ट के लिए रखिए। पहले आपका जो लो हैंगिंग फ्रूट के बारे में बताया, इजी क्वेश्चन चेरी पिक कीजिए कि 7 से 10 क्वेश्चन, वो आपके इनिशियल कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया पहले 10 क्वेश्चन में, तो फिर आप इतनी सिली मिस्टेक करेंगे। आप वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं पर पीछे दिमाग में चल रहा है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो मेरा गलत हो गया, उसका वही ऐसे होना चाहिए था। तो आपको 28 क्वेश्चन नेट सही करने हैं, 27 से 28 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। आप 40 को पिक कीजिए, उसमें से अगर आपके 1-2 गलत 4-5 सही ऐसे होंगे आगे 27 के बाद, तो नेट आप पॉजिटिव रहेंगे। तो 40 क्वेश्चन का टारगेट रखिए कि हाँ ये 40 क्वेश्चन तो मेरे को करने ही करने हैं। उसके बाद टाइम परमिट्स तो आप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ले सकते हैं। So I wanted to ask that as there is a plan and anything that the sun can cover, so how I can bifurcate the things like what should be studied and what should be studied? What to study and what not to study? This is your question now. In what terms? There is a clear-cut syllabus for all the subjects, be it GS1, GS2. Everything under this sky, UPSC, that can be asked. This is the thumb rule of UPSC. So you just take 5 to 10 years previous year question papers. You will analyze a theme कि यूपीएससी इस सेक्शन से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, you will certainly realize कि UPSC will ask from this section of polity, like lieutenant governor. पिछले 5 साल में 3 बार lieutenant governor पूछा गया है। अब उसके पीछे की कहानी क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट और lieutenant गवर्नमेंट में हमेशा टसल चलती रहती है। सो एक हॉटबेड बना हुआ है पॉलिटी के लिए, दिल्ली के लिए। तो आप जब पिछले 10 साल का क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आपको एक थीम पता चल जाएगा कि रिकरिंग थीम क्या है। फिर आप उस थीम को देखिए कि थीम पूछा क्यों गया था वो क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि लिeutenant गवर्नर का 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। वो इसलिए आया है क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ऑलवेज वो न्यूज़ में रही है लिeutenant के साथ टसल के लिए लेके। सिमिलर थिंग आप GS1 में जब आप सोसाइटी का पार्ट पढ़ेंगे तो क्राइम अगेंस्ट विमेन है या फिर कोई और पर्टिकुलर सोसाइटल एस्पेक्ट है, सुसाइड्स है, कोविड-19 का पैंडेमिक का डोमेस्टिक वायलेंस पे क्या वो असर पड़ा, उसके रिपरकशंस क्या हैं, ये थीम्स है जो कि रिकरिंग थीम्स आएंगे। आप जब टॉपिक वाइज आप उसको देखेंगे, एक विशाल पब्लिकेशंस की बुक आती है
वो प्रीवियस ईयर के पेपर क्लब करके देती है, किस टॉपिक से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो आप एक पैटर्न उसमें निकाल लेंगे कि हाँ इस टॉपिक से, इस थीम से, इस सब थीम से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो आपको वो पढ़ना है, बाकी छोड़ना है। बाकी सिलेबस यूपीएससी का इतना एग्जॉस्टिव है कि कुछ भी आता है उसमें, बट आप अगर थीम पकड़ लेंगे तो उससे बाहर आप नहीं जाएंगे, आप इधर उधर नहीं जाएंगे। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की थी। कंप्यूटर साइंस कहीं पे ऑप्शनल की लिस्ट में है नहीं यूपीएससी में, तो मुझे कोई ऑप्शनल लेना था, तो मैं मास्टर्स जेईई से कर रहा था, तो मैंने ऑप्शनल ज्योग्राफी ले लिया। अच्छा, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले कितने हैं? आप अकेले ही हैं, ज्योग्राफी छोड़ चुके हैं यूपीएससी वाले। खैर, जगह ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप पेपर 1 पेपर 2 को अलग अलग सेग्रीगेट कीजिए। इसके बाद अगर किसी के क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, मैं आपको अपने नंबर दे दूंगा, क्योंकि किसी एक की क्वेरी के लिए हम 50-60 को नहीं बैठा सकते हैं, फिर वो आपको मन बोल रहे होंगे कि तेरे को बड़ी चुल मच रही है क्वेश्चन पूछने की। तो कोई स्पेसिफिक पर्सनल क्वेरी होगी तो मैं उसको व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अभी इनके बाद सेशन को एंड करते हैं। तो ऑप्शनल में जब पेपर 1 पेपर 2 देखेंगे, तो पेपर 1 में ज्योमोर्फोलॉजी, बायोजियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, आप उसमें आपके जो डीयू का सिलेबस है आप उसको एनालाइज करें, तो उसमें जो सजेस्टिव रीडिंग देते हैं, आप उनमें से कभी कोई किताब देखे हैं या फिर ऐसे ही बस सविंदर सिंह के भरोसे ही चलते हैं? हाँ, तो उसमें जो आप सजेस्टिव रीडिंग में जो देखेंगे ना, बहुत अच्छी अच्छी किताबें दे रखी है सजेस्टिव रीडिंग में। आप उन किताबों से थीम उठाइएगा जो कि यूपीएससी में के सिलेबस में दे रखे हैं। जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जब आप जो है तो प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी थॉर्नबरी की सजेस्टिव रीडिंग में डीयू के बीए प्रोग्राम में, बीए ऑनर्स में, तो उसमें पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी का सिलेबस डिट्टो यहीं से लिया गया है। तो आप सजेस्टिव रीडिंग जो आपका ऑनर्स का प्रोग्राम जो है बीए का डीयू का, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर कर लेता है कॉम्प्रिहेंसिवली। ऑप्शनल उसमें रिमोट सेंसिंग वगैरह छोड़ देना, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, बस सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना और डीयू का सिलेबस पढ़ लेना, दोनों क्लैश करते हैं एकदम, दोनों। मैं ज्योग्राफी पढ़ा हूँ, मैं ज्योग्राफी के बारे में बोल सकता हूँ। नहीं, देखो ज्योग्राफी में मार्क्स ऑप्शनल में कम आते हैं, तो उसका कंपनसेशन भी तो आप देखिए। आप GS1 में ज्योग्राफी नियर अबाउट 120 मार्क्स की आती है, GS3 में आप डिजास्टर मैनेजमेंट में, एनवायरनमेंट में जाओगे, वो भी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आप जब ऐसे लिखेंगे एक क्वेश्चन, कोई ना कोई ऐसे आपको ज्योग्राफिकल थॉट से आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो आप ये मत देखिए ना कि सिर्फ 250 नंबर की ज्योग्राफी है, आप देखिए कि GS1 में, GS3 में और ऐसे में ज्योग्राफी आपको बहुत मदद करती है। यही ज्योग्राफी वालों को रिटेन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो क्विकली अगर किसी का एक क्वेश्चन और हो तो बताएं। सर मैंने सवाल है कि एक्चुअली पढ़ना कैसे है और ट्रांसलेशन जो होता है उसको किस तरह से रिजॉल्व करें। देखिए, पहले तो मैं बताया कि जैसे कि अभी आप सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में, तो आप ऑप्शन डिसाइड कर लिए अपना। हाँ, लिटरेचर ले सकते हैं आप। तो फिलहाल तो आप अपना लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उनको सोल्व कीजिए। जब आप एक बार रिटर्न में आप आंसर लिखने लग जाएंगे और आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आंसर लिखने लग जाएंगे, तो जीएस विल बी हलवा। जीएस के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं करता, सब अपना ऑप्शनल ऐसे और इथिक्स में लगे रहते हैं। जीएस बस ऐसे राम भरोसे निकलती है, क्योंकि सबको एवरेज मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स देता हूँ। जीएस 1 2 3 जो सिलेक्टेड बंदे हैं, 24 की मैं बात करता हूँ, दे ऑन एन एवरेज गुड 110 to 115 हाईएस्ट मार्क्स, और उनके लोवेस्ट, और जो सिलेक्ट नहीं हुए, जो लोअर एंड स्पेक्ट्रम पे रहे, उनके मार्क्स थे 90, 92, 95। आप डिफरेंस देख लीजिए। और वहीं ऑप्शनल में आप जब जाएंगे तो 300 और 250 240 ये रहता है, 40 मार्क्स का डिफरेंस रहता है। ये सिलेक्टेड की बात कर रहा हूँ। तो आप जहाँ पे मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं वो है ऑप्शनल, इथिक्स और एसे। तो आप अभी अपने ऑप्शनल पे तैयारी कीजिए। जो जीएस के पेपर्स हैं वो जनरल स्टडीज है, तो जनरल नंबर उनमें एवरेज नंबर आते हैं। अगर आप एवरेज आंसर लिखते हैं तो उसी के अराउंड में 100 105 इसके अराउंड में अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो आप अपने ऑप्शनल तैयार कीजिए।
जब वो ऑप्शन पढ़ेंगे और यूपीएससी से उसको देखेंगे प्रीवियस ईयर से, तो यू विल गेट टू नो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। थैंक यू। Thank you, sir. That was indeed inquisitive. I hope all the aspirants and the students present here have learned something from this session. I'd also like to thank both our chief guests here, both our esteemed guests here, and finally call upon Naman sir here to bring on the closing remarks. Thank you. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों के लिए मैं एक बात कहूँगा, फिर मैं अपने गेस्ट पे आता हूँ कि क्योंकि मैं, शशांक सर, शुभ सर बैठे हुए हैं और आप दोनों, हम इसी जर्नी से आए हैं कहीं ना कहीं। तो कुमार विश्वास साहब की 2 लाइनें हैं कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो I stand before you to deliver formal vote of thanks. So I thank Dr. I thank Subh sir, Shashank Patel sir to organize this session for all of you, and our guest to deliver this beautiful lecture and interactive session, Vinay sir and Priyanshu. So एक और है कि अब मेरे मन में आया तो शाम भी हो गई है तो बोल देता हूँ, अपना ही सेशन है, अपनी सोसाइटी है, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए कहा है तो ये भी डिजर्व करते हैं। शैलेश लोढ़ा एक कवि हैं, उनकी 2 लाइनें हैं नेशन सोसाइटी सर्विंग के ऊपर कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे और हमने वतन मांग लिया। थैंक यू। कल को आप लोगों को भी यहाँ पे आना है, हम आपको मंच प्रोवाइड करेंगे, आप बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और जो इन लोगों ने बताया बस आप उसको पिरोइए, समझिए क्या कहा है, और कल आप यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। थैंक यू। Thank you everyone for being part of this insightful session today. A special thanks to our guest speakers for sharing their experiences, and to all of you for your active participation.